Good morning, class 7th students. So, today I will discuss on the topic animal tissues, their functions of the epithelial tissue I discussed on the previous day. They are doing different functions like protection, absorption, secretion. Up to this much I explained. So, all of you open your biology book, lesson number 1, tissues, page number 5. So the topics which I discussed on the previous day of this same lesson 1, I gave some questions on homework also. So let us discuss the question which I gave you as homework on the previous day after the topic discussion. So let us discuss the question: how many types of animal tissues are there? So answer will be on page number 5. There are 4 different types of animal tissues. Name all the types of animal tissues. You will write epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Third question I gave: describe the structure of epithelial tissue. You will write from here: the epithelial tissue is made up of a layer of closely packed cells that form a continuous sheet with almost no intercellular spaces. Next I gave where the epithelial tissues are found. You will write from here: it covers the surface of the body and forms the lining of our internal organs. It forms the outer layer of the skin and inner lining of the organs such as stomach, intestine and blood vessel. Okay. Write in brief the following functions of the epithelial tissue. First function, protection. This protection you will write: the epithelial tissue that forms the outer layer of the skin and lines internal organ protects them from the injury. Next, absorption. This one you will write: cells that line the small intestine absorb the nutrients from digested foods. Next was secretion. The epithelial tissue that forms the lining of salivary glands and pancreas secrete enzymes and other substances. So these are the questions I gave on the previous day on the topic which I discussed on the previous day. All the answers are given on page number 5 of your biology book. I hope you have understood where the answers are there. I hope you will be able to write the answers properly now. So now let us come to the today's discussion. Regarding animal tissue, one function of the epithelial tissue was left out. That I am going to discuss. So एक दूसरा अंतिम काम है epithelial tissue का excretion. Excretion मतलब removing the waste product from our body. हमारा शरीर में सेल के अंदर बहुत सारा काम होते रहता है, तो होने के साथ साथ सेल क्या करता है, कुछ दूषित चीज, कुछ बेकार चीज प्रोड्यूस करता है शरीर के अंदर, उसको बाहर फेंकना जरूरी होता है. नहीं तो अगर वह बेकार चीज हमारे शरीर में रह जाएगा देन वी विल गेट डिजीज, वी विल गेट इल. अगर रह जाएगा तो बीमारी हो सकता है. सो ये एक्सक्रीशन बाहर फेंकने का काम, अंदर बनते हुए खराब चीजों को बाहर फेंकने का काम बोलते हैं एक्सक्रीशन. दिस फंक्शन इज कैरिड आउट. ये काम इस कैरिड आउट किया जाता है किससे? बाय द एपिथेलियल सेल्स. जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल है जिसको एपिथेलियल सेल बोलते हैं, जो कहां पे पाया जाता है? इन स्वेट ग्लैंड्स एंड किडनीज. स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना वाला ग्लैंड. ग्लैंड मतलब ग्रंथि, बैग की तरह होता है जो हमारे चमड़े के ठीक नीचे. दिस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स आर जस्ट प्रेजेंट बिलो द स्किन ऑफ आवर बॉडी. एंड फ्रॉम दिस ग्लैंड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोज एपिथेलियल टिश्यू सेल इनसाइड द स्वेट ग्लैंड, इस ग्लैंड के अंदर, ग्रंथि के अंदर सारा भर के रखा हुआ है क्या? एपिथेलियल टिश्यू का सेल. वे क्या करता है? हमारे ग्लैंड से बाहर निकालता है पसीना को जो चमड़े से बाहर निकल जाता है. सो दिस एक्सेस वाटर रिमेनिंग इनसाइड द ग्लैंड, दे आर टेकन आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू सेल प्रेजेंट इनसाइड द होल ऑर्गन ऑफ द स्वेट ग्लैंड. एंड किडनीज ऑल्सो. किडनीज मतलब गुर्दा जिसको बोलते हैं, दे आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड आवर चेस्ट, छाती के पीछे. ये किडनी क्या करता है? विच हेल्प्स इन द वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. किडनी कौन सी वेस्ट को बाहर फेंकता है? किडनी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वे किडनी में आके जमा होता है. एंड एक्सेस फ्लूइड, जो तरल वाली चीज जो हम लोग खाते हैं या कोई एक्सेस फ्लूइड जो बन रहा है शरीर के अंदर, सेल के अंदर, वे सारे एक्सेस तरल वाले चीज सारे और गंदा चीज जो शरीर के अंदर, सेल के अंदर बन रहा है, वे सारे चीज किडनी में आता है. देन दे आर थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द यूरिन. हमारे पेशाब के द्वारा ये सारे चीज शरीर से बाहर फेंका जाता है.
तो बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी के अंदर, किडनी वाले जो अंग है हमारे शरीर के अंदर, they are inside the kidney, it is covered by the epithelial tissue cell. Those epithelial tissue cells helps in removing the waste products coming and getting stored in the kidney, and the excess fluid inside the body which is getting stored inside the kidney, they are thrown out from our body with the help of the epithelial tissue cells in the form of urine. पेशाब की तरह से निकाल दिया जाता है. Now let us discuss regarding the connective tissue, जुड़ने वाला टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्टिव लिखा हो जुड़ना वाला, जोड़ने का काम. तो कनेक्टिव टिश्यू वे होता है, वे सेल वाले टिश्यू होता है जो सेल वाले टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? जॉइंस, जोड़ता है हमारे शरीर के वेरियस ऑर्गन, अलग अलग अंग को, एंड टिश्यूज. हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरह टिश्यू है, उन टिश्यूज को भी जोड़ने का काम ये कनेक्टिव टिश्यू करता है. टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एंड प्रोवाइड, और देता है सपोर्ट, सहारा, टू देम, और उन ऑर्गन को सहारा देता है एक जगह रहने के लिए, पकड़ के रखता है ये कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ के ऑर्गन को. द सेल्स दैट फॉर्म दिस टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स, तो पता है टिश्यू बनता है बहुत सारा, एक ही तरह सेल, एक ही तरह काम करने वाला सेल मिलकर टिश्यू बनता है. तो ये कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी सेल है हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस. हर सेल के बीच बहुत सारा जगह है, बहुत ही बड़ा जगह हर सेल के बीच पाया गया है. दे आर स्प्रेड, ये कनेक्टिव टिश्यू का वाली सेल आर स्प्रेड, फैला हुआ है, थ्रू आउट द ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड सब्सटेंस मतलब शरीर के पूरे जगह में, और इसको मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर्म्ड ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस. और क्या होता है? वो जो सेल है कनेक्टिव टिश्यू शरीर के पूरे जगह में पाया जाता है, और वे बना रहता है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और वे सारा चीज बने रहते हैं कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, मतलब सेल के बीच जो चीज, सेल के बीच जो जगह होता है, जगह में जो जगह में कुछ चीजें रहते हैं, उन चीजों को बोलते हैं मैट्रिक्स. मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो सेल का बना हुआ है, हर सेल के बीच जगह रहता है, और इंटरसेलुलर स्पेस मतलब जगह, वो सेलों के बीच की जगह के अंदर भरा रहता है ये ग्राउंड मैट्रिक्स, एक चीज भरा रहता है पूरे. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस मतलब उसकी कनेक्टिव टिश्यू के बनावट के आधार पर और कनेक्टिव टिश्यू के काम करने के आधार पर, कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स. कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के हैं. सो नेक्स्ट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. तो 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, उनके काम करने के हिसाब से. एक है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू सहारा देता है. सपोर्टिव मतलब सहारा देना. सो दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप. इस तरह के जो टिश्यू हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू शरीर के अंदर में प्रोवाइड देता है हमारे शरीर को एक डेफिनिट शेप, एक आकार देता है, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी जो बनावट है, शरीर की बनावट है, उसको सहारा देता है टू द बॉडी. शरीर के बनावट को और शरीर के आकार को ये टिश्यू सहारा देता है. इट कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजेस बोन्स. इसके अंदर ये भी कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का होता है. एक है कार्टिलेज वाला कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है बोन्स वाला कनेक्टिव टिश्यू. Now cartilage connective tissue. The cartilage connective tissue, see this figure, is relatively soft. ये काफी नरम होता है ये टिश्यू, एंड फ्लेक्सिबल, लचीला होता है. मतलब खींचोगे टिश्यू को बड़ा हो जाएगा, छोड़ दोगे अपनी शेप में आ जाएगा, मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा, मोड़ना बंद कर दोगे तो अपनी शेप में आ जाएगा. इसको बोलते हैं लचीला सपोर्टिंग टिश्यू. और ये सहारा देता है हमारे शरीर की बनावट को और शरीर की आकार को. इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. सो दिस कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू बना है बहुत सारे सेल का. उन सेल को बोलते हैं क्रॉन्डोकाइट्स. इज फाउंड इन ए मैट्रिक्स. नाउ सी हियर, शरीर के अंदर ये जो वायलेट बैगनी कलर की चीज देख रहे हो, ये सब क्या है? मैट्रिक्स. ये चीजें हैं, उस चीज के अंदर ये सब, ये कार्टिलेज टिश्यूज का सेल है. ये सब कार्टिलेज टिश्यूज का सेल दिखाई दे रहा है. ये सारा सेल कॉन्ड्रोकाइट, ये सब ये कॉन्ड्रोकाइट सेल है, ये भी कॉन्ड्रोकाइट सेल है, ये भी कॉन्ड्रोकाइट सेल है. ये सारा सेल मिलके बन गया सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. और बताया गया था कि हर सेल के बीच ये कनेक्टिव टिश्यू में जगह रहता है. देखो ये 2 सेल, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 1 सेल है, यहाँ पे और 1 सेल है. ये यहाँ ये सेल के बीच देखो काफी जगह है. इस जगह में कुछ चीजें भरा पड़ा रहता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स. तो इन भरे हुए चीजों के अंदर, शरीर के अंदर भरे हुए चीजों के अंदर ये सेल दिखाई दे रहा है, इन सेल को बोलते हैं क्रॉन्डोकाइट्स. और ये किसकी सेल है? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का सेल है. और क्रॉन्डोकाइट्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द मैट्रिक्स इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 सेल्स. ये सारे जो मैट्रिक्स, जो चीज है बैगनी कलर की चीज शरीर के अंदर, उसके अंदर जो क्रॉन्डोकाइट्स
सेल देख रहे हो कनेक्टिव टिश्यू के, हर कनेक्टिव टिश्यू को देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू 2 या 3 एक साथ जुड़ा होकर रहता है। देखो यहाँ पे 2 कनेक्टिव टिश्यूज, क्रोंडोकाइट कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स आर जॉइंट टुगेदर। यहाँ पे देखो 2 क्रोंडोकाइट सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज आर जॉइंट टुगेदर, लेकिन ये 2 सेल और ये 2 सेल के बीच जगह है। यहाँ पे देखो 2 सेल क्रोंडोकाइट सेल कनेक्टिव टिश्यू का जुड़ा हुआ है, ये भी 2 सेल कनेक्टिव टिश्यू क्रोंडोकाइट सेल कनेक्टिव जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 2 जोड़े क्रोंडोकाइट सेल जो कनेक्टिव टिश्यू के बीच स्पेस भी रहता है। सो दिस सेल्स आर नॉट, ऑल द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज आर नॉट जॉइंट विथ ईच अदर, दे आर जॉइंट इन 2 or 3 इन ग्रुप्स, 2 या 3 के समूहों में जुड़ा रहता है। सारे क्रोंडोकाइट सेल को देखो सब एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सो कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ द बोन्स। इस तरह के सेल हमारे हड्डियों के जहां खत्म हो रहा है, एंड मतलब खत्म हो रहा है, वहां पे पाया जाता है। एंड इन द विंड पाइप, हवा की पाइप, जो व्हेन यू ब्रीथ इन, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, हवा की गैस को अंदर लेते हैं थ्रू द नोज होल, हमारे नाक की छेद से घुसने के बाद, आफ्टर एंटरिंग द होल ऑफ द नोज की छेद में घुसने के बाद, दे एंटर इनसाइड द विंड पाइप। हवा की पाइप है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज एंड गोज थ्रू द नेक, गले के अंदर से ये जाता है पाइप, जिसके अंदर से हवा आगे बढ़ते रहता है, इसको बोलते हैं विंड पाइप। सो इनसाइड द विंड पाइप ऑल्सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू सेल्स। ओके, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट आवर नोज टिप। हमारा नाक की नोक में भी ये प्रेजेंट है, ये अंदर में, नाक की नोक के अंदर में ये सारे सेल प्रेजेंट है। ये कौन सी? सपोर्टिव कनेक्टिव कार्टिलेज वाला टिश्यू। एंड ऑल्सो इन आवर एक्सटर्नल ईयर, हमारे कान, जो बाहर वाला कान है, कान का अंदर वाला पार्ट होता है, जो छेद देख रहे हो, छेद अंदर जा रहा है, वो अंदर वाला पार्ट है कान की, और बाहर वाला कान की पार्ट है, वहां पर भी ये दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर फाउंड। द मेन फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज इज टू प्रोटेक्ट, प्रमुख काम इस कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का प्रमुख काम है सुरक्षा देना हड्डियों को, बोन्स को, एंड अदर ऑर्गन्स, दूसरे अंग को, फ्रॉम शॉक, झटके से। शरीर में जब झटका लगता है बाहर से या अंदर से झटका लगता है, तो उसको रोकता है, झटके को, तेज झटके को कम कर देता है। तो ये कौन करता है? जो ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज वाली। उसके बाद नेक्स्ट कम टू द अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज देयर, दोज आर नोन एज बोन्स कनेक्टिव सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स फॉर्म द स्केलेटन, हड्डी क्या होता है? हमारा स्केलेटन, मतलब ये कंकाल, पूरे शरीर के कंकाल को बनाता है, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारे ढांचा को बनाता है। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड ऑस्टोकाइट्स। ओके, ये जो बोन में जितने सारे सेल है, ये किस सेल का बना? ये सारे सेल को बोलते हैं ऑस्टोकाइट सेल। दीज ऑस्टोकाइट्स आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स मेड अप ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फास्फोरस। ये जो बोन्स के अंदर जितने भी सेल है उसको बोलते हैं ऑस्टोकाइट सेल। ये सारे ऑस्टोकाइट सेल सारे ऑस्टोकाइट सेल मिलकर कौन सा टिश्यू बनता है? सपोर्टिव बोन्स वाली कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ये सारे ऑस्टोकाइट सेल आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स, हमारे बोन में एक चीज के अंदर ये पाया जाता है, जो चीज बना रहता है सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इज द सेल, एंड ये सारी चीज देख रहे हो, काले काले छोटे छोटे चीज जो चारों तरफ घेर के रखा हुआ है, ये सेल, दूसरी सेल को देखो, दोनों सेल के बीच जगह है। हमने बताया था कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू का सेल के बीच जगह रहता है, और इस जगह में कुछ चीजें रहती हैं जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये चीजें क्या है? जो घेर के रखा हुआ है बाहर से सेल को, हर सेल को, ये चीज है नमक। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस नमक इसमें है। द मैट्रिक्स मेक्स द बोन्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। ये जो मैट्रिक्स, ये सारी चीजें हैं, जो नमक किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस की। ये क्या करता है? बोन को, हड्डी के सेल को काफी कड़ा करता है, एंड स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली बनाता है, और उसकी बनावट को भी काफी कड़ा और शक्तिशाली बना देता है। बोन सच एज फेम्यूर, हमारे शरीर में कई तरह के बोन है। एक हड्डी जिसको फेम्यूर बोलते हैं, जो जांग, थाई में पाया जाता है, वो हमारे शरीर के सबसे लंबा हड्डी है। हैव ए सब्सटेंस, इस हड्डी के अंदर एक चीज पाया जाता है, बोन मैरो, जिस चीज से हम लोग क्या करता है, वो बनाता है क्या? ब्लड सेल, खून की सेल बनाता है। ओके,